So dear students, our today's topic is essay writing, and that is the continuation of previous topic. Yesterday we discussed the same things and we came to know that how we should arrange our thoughts, our knowledge for writing an essay. Essay is considered the most difficult type of writing because it needs too much formality and it needs too much organization of different ideas into we should say that a systematic way, and that needs knowledge, vocabulary, grammatical and knowledge, and like these things, they are very important for essay writing, for correct essay writing. So students should be not discouraged. It's not as much difficult if we are going to think about what are the types of essay writing. I discussed previously that there are three types of essay writing: descriptive essays, narrative essays, and then we come to verse, abstract or reflective essays. So if we keep in view these three types, uh, we come easily towards these understandings, or we should say that the concept of essay writing. And then we discussed that there are main three parts of essay writing. When we come to write exactly an essay, we should keep in view the beginning, we should keep in view the middle part, that is the main part of the essay, and then conclusion is also very important type. So in we also discussed that in intermediate classes, according to the federal board, it is quite an easy task because it also consists of outlines or points that are mentioned in the question in annual paper. So students should not be confused, should not be discouraged. Rather, they should be encouraged for writing an essay because it is quite an easy task because of the outlines, because of the method that you have got right now. So these three types we discussed uh, of essays, and then we discussed that there are three main parts, and then we discussed that we should focus on each and every point in each paragraph separately. They should not be mixed together and all the sentences should be logically connected with each other. They should be coherent, they should be we should say that ideas should be logically connected with each other. So when we are going to discuss the outlines, what type of outlines, that's also important for us. Outlines कौन कौन सी होती हैं या किस तरह की outlines बनाई जाती हैं. Sometimes there are traditional outlines. The traditional outline puts each phrase on a line and indicate the level of the idea by indentations and number letter system. This system clearly indicates the relationship of ideas. You should note, however, that usually such a complete outline in the final product of a long process of reworking a rough outline. तो समटाइम कुछ आउटलाइंस ऐसी होती हैं जो कि ट्रेडिशनल्स होती हैं, उसमें कुछ फ्रेजेस या लाइंस जो है वो पुट कर दी जाती हैं. फिर अगर हम आते हैं दूसरी तरफ न्यूक्लियस आउटलाइंस, और न्यूक्लियस आउटलाइंस होती हैं डज नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप और सीक्वेंस ऑफ आइडियाज एज नीटली एज द ट्रेडिशनल मेथड. इंस्टेड द न्यूक्लियस आउटलाइन यूजेज अ मोर इनफॉर्मल क्लस्टरिंग अप्रोच टू ग्रुप सिमिलर आइडियाज. यानी इसमें जो है ना एज सच कोई उनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता. तो बेसिकल इसमें डिफरेंस क्या है कि ट्रेडिशनल आउटलाइंस में आपस में जो आइडियाज़ होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके एक फॉर्मल वे में प्रेजेंट किया जाता है. न्यूक्लियस आउटलाइंस में जस्ट मेन आइडियाज़ को पुट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर, in the form of a, we should say that group, but they are not it is not necessary that they are logically connected with each other or they have some connection with each other. The students themselves have to make the connection. How to develop an outline? There are some basic points. How can we develop an outline? Brainstorm, cluster, and evaluate. Brainstorm, of course, that comes to our we should say that restoring, or we should say that reviving, or we should say that it is recalling of the ideas in our mind. The very first thing is that. Then it is the clustering. Clustering means we have to collect them together, we have to make a group, we have to make all the ideas together after coming into our mind, after calling up them. And then we should come towards evaluation. Evaluation means we have to make them in arranged form, in the form of we should say that in a proper form, in a formal way, so that we are able to write exactly what there is present. The brainstorm, a topic is simply to list everything you know about it.
तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि ब्रेनस्टॉर्म बेसिकली क्या है। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है कि आपने माइंड में अपनी चीज़ों को रिकॉल करना है, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनको रिवाइज करना है, अपने माइंड में लेके आना है। द लिस्ट विल नॉट हैव एनी ऑर्डर और लॉजिकली ग्रुप्ड सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब आप ब्रेनस्टॉर्म या फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं तो उसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ों को लॉजिकली ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगी आपको। इट मीन्स कि जस्ट एक रफ रिकैलकुलेशन है, एक तरह से रिवाइविंग ऑफ आइडियाज़ है जो कि आपके माइंड में है, उनको एक तरह से आप रिकॉल करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक तरह से फोकस करके कि ये आइडियाज़ आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। उसके बाद द की इज़ टू राइट योर आइडियाज़ ऑन पेपर। और इसमें बेहतर ये होता है, इसमें बेटर पार्ट ये है कि आप उसको अपने आइडियाज़ को आप एक रफ फॉर्म में लिख लें, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके आइडियाज़ फिर से मिस ना हो या आपके माइंड में से आउट ऑफ कन्फ्यूजन या आउट ऑफ डिफ़िकल्टी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर एनुअल बोर्ड पेपर, ऑफ कोर्स दैट हैपन्स। तो उसमें आप टेंशन में या किसी भी किस्म की टेंशन या किसी भी और डिफ़िकल्टी की वजह से वो आइडियाज़ आपके स्किप ना हो, आप उनको एक पेज के ऊपर लिख सकते हैं रफ वर्क के तौर पर, और वो आइडियाज़ इकट्ठे हो जाएंगे ताकि आप उनको आगे नेक्स्ट पार्ट में ले जाएं। फिर उसके बाद आफ्टर यू कंप्लीट योर ब्रेनस्टॉर्मिंग लिस्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लस्टर। टू क्लस्टर मीन्स टू इंडिकेट विच आइडियाज़ गो टुगेदर, यानी फिर आपने उनको इकट्ठा करना होता है कि जो रफ आइडियाज़ आपके पास आ रहे होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जो कि कोई आइडिया आपका कहीं से माइंड में आता है, कोई कहीं से आता है, फिर आपने उनको आपस में इकट्ठा करना होता है ग्रुप के फॉर्म में कि ये आइडियाज़ इकट्ठे हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इस तरह से उनको करना होता है। यू कैन यूज सिम्बल्स सच एज अ स्टार्स फॉर वन क्लस्टर, यानी एक जैसे जो आइडियाज़ हैं उनके लिए आप स्टार लगा लें, दूसरे जैसे जो आइडियाज़ हैं डिफरेंट उनके लिए स्केल्स फॉर अनदर। और यू कैन ड्रॉ जॉइंट सर्कल्स अराउंड सिमिलर आइटम्स, या उनको आप आपस में इकट्ठा कर लेते हैं कि ये आइडियाज़ एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इनको आपस आपस में इकट्ठा आपने लिखना है, इनको इकट्ठा ग्रुप करना है, इनको इकट्ठा करना है। इस तरह से आप उसमें डिफरेंट साइंस लगा सकते हैं कि ये आइडियाज़, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट अटैम्प्ट में जो आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट, we should say that they are not in formal way, they are not in of course arranged form, group form। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में उनको इकट्ठा करना होता है, ग्रुप करना होता है। आफ्टर क्लस्टर यू मेक अ न्यू ड्राफ्ट दैट प्लेसेस ऑल द सिमिलर आइटम्स टुगेदर। फिर आपने एक न्यू ड्राफ्ट बनाना होता है, ये यानी आपका एक फाइनल प्रोसेस होता है बिफोर राइटिंग एन ऐसे। उसमें आपने तमाम आइटम्स जो कि एक जैसे उनको इकट्ठा लिखना होता है, अरेंज करना होता है और यहाँ पे अब आपको समझ लेना चाहिए कि अब आप रेडी हैं, आपके आइडियाज़ प्योर अरेंज फॉर्म में है, एक फॉर्मल वे में इकट्ठे हो चुके हैं, और उनको फिर आप क्या कर सकते हैं फाइनल फॉर्म में, यानी प्योर फॉर्म में, ऐसे की फॉर्म में लिखने के लिए वो पार्ट्स रेडी होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए जब हम एक ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने याद रखनी है। अंडरस्टैंड द टॉपिक फुली, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट you should understand, you should get about the topic very completely, in a very good way, completely fully। यानी आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें कि आपको पता हो कि ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के बारे में कौन कौन सा नॉलेज है या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो सकती है माइंड में। देन यू शुड try to attempt that topic, think over it and collect as much material as possible, write down all points, select the points that you would like to incorporate in the essay। incorporate का मतलब होता है उनको आपस में मिक्स करना, मिलाना। arrange your points in a proper order, give a brief but good introduction, let the first sentence be striking। और ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से की कि इंट्रोडक्शन जो होता है, और स्पेशली फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट 2 3 4 sentences, they must be striking, they must be motivational, they must be very impressive, attractive, और we should say that इवन माइंड ब्लोइंग। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन कंसिडर किया जाता है। और ऐसा ही है, हमारे यहाँ ये एक ट्रेडिशनल एटीट्यूड या अप्रोच है कि आपका स्टार्टिंग, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत होना चाहिए। और कोशिश करें कि उसमें क्रिएटिविटी आप क्रिएट करें। हर शख्स, हर स्टूडेंट अपना अपना एक स्टार्टिंग दे, बेशक वो बहुत फार्मल, वी शुड से दैट कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी वाला और बहुत अच्छा उस तरह से नॉलेज वाला ना हो, लेकिन क्रिएटिव एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। आपके लेवल पे एटलीस्ट ये ज़रूर होना चाहिए कि आप खुद से उसको क्रिएटिव फॉर्म में लेके आएँ। हाँ, टिपिकली प्रोटोटाइप जो होते हैं, ऐसे स्टार्ट्स होते हैं, वो आपने नहीं लेने, या आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ पुट नहीं करानी जो आपको लगता हो कि ये जस्ट क्रैमिंग की हुई, या किसी की बुक से, किसी
हैंड बुक से, कहीं किसी जगह से, और वो सब लोगों ने एग्जैक्टली वही की हो। तो जब पेपर मार्कर्स जो हैं वो पेपर मार्क कर रहे होते हैं आपके टीचर्स, तो डेफिनेटली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। व्हेन यू आर राइटिंग एन ऐसे, आप एक अकेले स्टूडेंट जो है आप ऐसे लिख रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि बाकी लोगों ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बट व्हेन योर पेपर इज मार्क, you must keep in view that your paper is marked by the same person, and definitely the person who is marking your paper, he is not only looking at your paper, he is looking at so many papers other than yours. तो एक ही ग्रुप में या एक ही अटेम्प्ट में एक टीचर डेफिनेटली, या अगर हम इवन ये भी कहें कि एक दिन में कम से कम एक टीचर 25, 30, 40 वो वेरी करता है कि डिफरेंट पेपर वो एक दिन में चेक कर रहा होता है, तो डेफिनेटली उसके पास एक आइडियाज़ का एक एक वेरिएशन आती है, एक वी शुड से दैट के बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे आते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा आइडिया पुट किया है, आपने कोई ऐसा नॉलेज दिया है जो कि क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली वो स्ट्राइक करेगा और उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ये एक बहुत अंडर वी शुड से दैट एक एक्नॉलेज्ड फैक्ट है कि ऐसा होता है, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में शायद ऐसा ना हो, लेकिन लिटरेचर के पेपर में, या हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव टाइप थिंग्स होती हैं उनमें ये बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखनी है, ये मस्ट है। उसके बाद डिफरेंट आइडियाज शुड बी डेवलप इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। ये भी मैंने आपसे बात की कि डिफरेंट आइडियाज़ को डिफरेंट पैराग्राफ्स में डेवलप करना है आपने। एक ग्रुप, एक पैराग्राफ में एक आइडिया होना चाहिए या उससे सिमिलर आइडियाज़, यानी आप उनको कैटेगराइज करने हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं ये एक जैसे हैं, ये एक पैराग्राफ में आएंगे, दूसरे आइडियाज़ दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, तीसरे तीसरे में। तो इस तरह से करके आप उनको अरेंज करेंगे। तो ऐसे राइटिंग जो है ये एक बहुत बड़ी स्किल है और इसके लिए डेफिनेटली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और सबसे बेसिक पॉइंट इसमें जो है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव वी शुड से दैट रिजर्व ऑफ नॉलेज। कंजर्वेशन होनी चाहिए आपके पास नॉलेज की। आप डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज आपके पास आना चाहिए। उसके लिए तरीका यही होता है कि आप डिफरेंट बुक्स गो थ्रू करें, आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, उनको पढ़ें। डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए तमाम एक्टिविटीज़ को अपनी हैबिट बनाना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट में दैट माइट बी नॉट लाइक दिस, बट इन लिटरेरी सब्जेक्ट, इन लैंग्वेज पेपर्स, इंग्लिश उर्दू आर लाइक दिस। इसमें ये बहुत ज़रूरी है ऐसे राइटिंग के लिए कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपना एक्वायर करें, अडॉप्ट करें। द बॉडी ऑफ द ऐसे शुड हैव यूनिटी एंड कोहेरेंस। यूनिटी एंड कोहेरेंस पे हमने बात की कि डेफिनेटली वो कनेक्टेड होने चाहिए, और उसमें आप ज़्यादातर कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं या कंजक्शंस लाइक फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए कि एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट सेंटेंस जो उसी सेंटेंस के साथ कनेक्टेड है और उससे नेक्स्ट वन पीछे वाले या प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्टेड है। तो इस तरह की ये आपने यूज़ करनी है। Had a concluding paragraph in which you give some quotation or sum up the ideas or give your personal opinion। तो आखिर में आपने एक तरह से सब्जेक्टिव उसको कंक्लूड करना होता है, अपना जो कुछ आपने लिखा होता है उसको एक सम अप करना होता है। कोटेशंस आप इसमें डालें, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोटेशन से जो है वो एक खूबसूरती आती है, एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। आप ऐसे में आप 2, 3, 4 जितने भी आप कोटेशन डाल सकते हैं, दैट इज़ द वेरी गुड, और वी शुड से दैट द एक्सेलेंट पॉइंट ऑफ राइटिंग एन ऐसे। रिवाइज योर ऐसे, उसको री रीड ज़रूर करें एक दफ़ा, क्योंकि बाज़ का जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें आइडियाज़ जो है वो फ्लुएंसी में उतनी उनके अंदर वी शुड से दैट के सम टाइम कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती है, कुछ आइडियाज़ एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं कि जम्बलिंग हो सकती है उनकी, तो उनको थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए एक दफ़ा रीड ज़रूर करें अगर आपके पास टाइम बचे, बल्कि ज़रूर करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए इसके लिए। लास्ट 2-3 मिनट्स में आप इसको रिवाइज ज़रूर करें। लेट इट नॉट बी टू लेंथी और टू ब्रीफ। ऐसे में आपने ये भी माइंड में रखना होता है कि ना तो ये बहुत लेंथी हो और ना ही ये बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बल्कि ये एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया कि 2.5 पेजेस अगर आप लिखते हैं, 2.5 पेजेस मीन्स के वन साइड ऑफ द लीफ, दोनों साइड्स अगर आप मिलाएं तो उसको हम लीफ कहते हैं, एक लीफ। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि 2 पेजेस, इट मीन्स के एक साइड और दूसरी साइड और फिर हाफ पेज। 2.5 पेज एक बैलेंस और एक एवरेज वी शुड से दैट वर्ड्स लिमिट है। अगर आप इवन 3 पेजेस भी लिखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट स्टिल अगर आप 2.5 पेजेस का टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गुड वोकेबलरी के साथ और एक गुड आइडियाज़ के अरेंजमेंट के साथ अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा ऐसे दैट कैन रेंडर यू इवन
9, 10, or even more than this marks, right? So, dear students, that was the we should say that completion of our this topic. How should we write an essay? I think all of you have got the ideas and you have understood each and everything. Now we are going to make an end of this discussion, and now you should ask the questions.